So let us start new topic, the enveloping cone. So we were discussing the topic, the central conchoid. In the last class, we have derived some equations, condition of tangency, equation of a tangent plane. Next topic is the enveloping cone. Enveloping cone to the central conicoid. So let the question of the central conicoid, ax square by square plus cz square is equal to 1. This that represents the central conicoid. What is central conicoid? याद है किसी को? क्या होता है सेंट्रल कोनिकॉइड? बताइए. Any example? Sir, like ellipsoid, paraboloid, hyperboloid. Sir, or hyperboloid of one sheet. Means where you have paraboloid नहीं है, I think paraboloid का बताया था, है ना? Sphere. Sir, sphere था, ellipsoid और hyperboloid. The point is that you have a center at the origin, है ना? If you have a surface whose center is at the origin and any chord passing through that center is bisected at that point, that is basically your central conchoid, है ना? तो sphere है या ellipsoid है, you can see it has a property. You have center at the origin, and if you are passing through any chord, it will be bisected at this point. इस सरफेस को हम सेंट्रल कॉन्काइड बोलते हैं. तो इसके एग्जांपल्स हैं जो आपने बताया सारे. चलिए. So now suppose any line passing through. Now if the line always we take x minus alpha upon L, y minus beta upon m, z minus gamma upon m. It is a line on the space. So if the line passes through alpha, beta, gamma, this is the line passes through alpha, beta, gamma whose DC is LML. Suppose meets the conchoid 1 in some points P and Q. Suppose आपका कोई conchoid है, suppose इसी को ले लो, and it is meeting this at some point P and Q, not crossing, it is meeting at a point suppose P and Q. इस तरीके से meet होती हुई जा रही है P and Q पे, इस लाइन ने meet किया एक point P पे. So you know that the measures, so the measures this point A somewhere, it is coming P, it is Q. So the measures of AP and AQ, they will be basically, they are the roots of the quadratic equation of the quadratic equation. Quadratic equation क्या निकाले थे हमने? Just putting this equal to R, taking x is equal to L alpha plus R, y is equal to B beta plus M, Z is equal to N R plus gamma, and these points lying on the conicoid, so putting in the conicoid and arranging the terms. तो quadratic कौन क्या आती है आपकी? वो क्या क्वेश्चन थी? एक डायरेक्ट मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ. We have already calculated it. AL square plus BM square plus CN square
plus twice r a alpha l plus b beta m plus c gamma n and a alpha square plus b beta square plus c gamma square minus 1 is equal to 0 ना। ये क्वेश्चन आती है आपकी, याद है कैसे? यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए क्वेश्चन 2 से एंड पुटिंग इन 1, तो यू विल बी गेटिंग अ क्वाड्रेटिक इन आर। तो यहाँ पर जो आर है ये क्या है? आर इज टेकिंग दिस रेशियो इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स के यू विल पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर, यू विल बी गेटिंग डिफरेंट पॉइंट्स एक्स वाई जेड। तो अगर ए पी ए क्यू हम ले लें, कोई पॉइंट पी क्यू इधर है, तो इसकी जो लेंथ होगी बेसिकली वही इसके क्वेश्चन के रूट्स होंगे, क्योंकि रूट्स क्या आएंगे, वैल्यू ऑफ आर आएगी वो। तो इफ नाउ इफ P and Q coincide, then the line becomes, ये पी क्यू क्रॉस कर रही है, अगर ये कोइंसाइड कर जाए तो क्या होगा, लाइन पी एन लाइन जो है हो जाएगी सर। टेंजेंट बन जाएगी, है ना। तो अभी क्रॉस कर रही थी, लेकिन अगर आपने क्यू को यहाँ टेंट करा दिया तो इट विल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और टेंजेंट बन गई तो इट मींस दैट मींस इफ यू हैव अ टेंजेंट, तो टेंजेंट में क्या होगा, यहाँ पे सेम रूट स्क्वायर, रूट सेम हो जाएंगे। दैट मींस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। quadratic question है, it is giving you two values of r, one value for ap, one value for aq। लेकिन अगर पॉइंट pq मर्ज हो गए आपस में, then ap aq it will be equal, roots are same, roots are same means discriminant of the quadratic question is b square is equal to 4ac। b square means coefficient of r, so b square is twice a alpha l plus b beta m plus c gamma n, b square is equal to 4a, a means coefficient of r square, al square plus bm square plus cn square, c means this constant term, a alpha square minus 1। okay, here you can cancel out this square, so 2 square is 4, 4 you can cancel out, so what it is coming, it is coming a quadratic equation, a homogeneous equation। देखो जब आप पावर खोलेंगे तो ये होमोजेनियस टर्म आ रहा है यहाँ पे, so it means you can say L की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, thus the line to thus lies on the cone, any homogeneous represents a cone, so line basically lies on the cone। यहाँ पर L की वैल्यू हम पुट कर देंगे, eliminate LMN, L is how much, x minus alpha, r का term आएगा, it will cancel out, so I can put L is x minus alpha, so this equation will become, this will be a alpha in place of L I am putting x minus alpha plus b beta y minus beta plus c gamma z minus gamma its whole square, okay। एक मिनट स्टूडेंट वेट, एक मिनट होल्ड करेगा।
Yes. So this whole, and so what I am doing, I am just putting here the value of this. So the line यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी है, L के प्लेस पे x माइनस अल्फा, m प्लेस y माइनस बीटा एंड z, n is z माइनस गामा. So it will become this. Right hand side will become this equal to a of x minus alpha whole square plus b of y minus beta whole square plus c of z minus gamma whole square, which is your first term, into second term. यहाँ पर एल था नहीं, तो इसे एज इट इज लिख दीजिए, a l square into a alpha square plus b beta square plus c gamma square minus 1. ठीक है, ये टर्म एज इट इज. अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या आ रही है. कंडीशन एक निकालेंगे. Now you can see that if I will open the square, so what I am taking, firstly I am breaking it into two terms. So वैसे squares there are several terms, but I will break it into two terms only, and then we will take a square of two terms. Two terms मतलब सेम टाइप के टर्म एक साथ कर ले. जैसे x वाले टर्म यू कैन राइट सेपरेटली x y z. So you have a alpha x plus b beta y plus c gamma z. So I have just collected the terms of x y z, and rest of the terms you can write separately. So it will be how much? Minus a alpha square plus b beta square and plus c gamma square. ठीक है, तो इसे मैं टू टर्म्स का स्क्वायर बना लिया. नाउ I will open it like a minus b square, and here also you can take it same. इसका स्क्वायर you will open, ax square plus by square plus cz square, इसका स्क्वायर खोलेंगे, ax square plus by square plus cz square, है ना, सेपरेट कर रहे हैं हम टर्म्स में, एंड प्लस माइक म्यूट रखो भाई अपना. प्लस ए अल्फा स्क्वायर है ना. नाउ सिमिलरली एक टर्म ये आएगा, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, एंड प्लस ए अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर, ये टर्म आएगा, एंड क्या आएगा साथ में, माइनस ट्वाइस ए अल्फा एक्स प्लस बी बीटा वाई प्लस सी गामा जेड. ये सारा टर्म it will be coming in the first bracket. Last bracket में terms already are arranged, to write is as it is, a alpha square plus c gamma square minus 1. Okay, now open this square by taking formula a minus b square. So first square, first term का square हो जाएगा a alpha x plus b beta y plus c gamma z square. A square plus b square, that means that is your b, second term, minus 2 alpha beta minus twice a alpha x plus b beta y plus c gamma z into a alpha square plus b beta square plus c gamma square. It is your left hand side. Okay, right hand side में you can arrange terms. देखिए, so what will happen now? I will multiply, now multiplying this term into this, ये two terms bracket में, तो क्या होगा, firstly multiply this into this, then second term into this and third into this. So you will be getting three terms when you will multiply first with second. तो क्या आ रहा होगा देखिए, first I am multiplying this with this, so you will be getting
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इंटू ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर माइनस 1. Similarly, multiplying then this into this. The next term will be plus a alpha square plus b beta square plus c gamma square, a alpha square plus b beta square plus c gamma square minus 1. And then last term minus twice of this into this. So minus twice a alpha x plus b beta y plus c gamma z into a alpha square plus b beta square plus c gamma square minus 1. ये सारे टर्म्स आपके यहाँ पर आएंगे. ओके, एंड नाउ हियर इफ यू सी कुछ टर्म्स यहाँ पर कैंसिल होंगे आपके. कौन से टर्म कैंसिल हो रहे हैं देखिए. सर -2 से -2 वाला सर. -2 ये वाला टर्म है ना. यस सर. ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म से कैंसिल नहीं. यहाँ पे पहले से हमें इसकी इंटू करनी पड़ेगी एक्चुअली. तो जब इसकी इंटू इसमें होगी तब ये टर्म्स कैंसिल होगा, क्योंकि ये पूरा टर्म जी माइनस सर. के साथ इसमें इंटू होगा. तो ये कैसे कर दे रहा हूँ मैं, इसकी इंटू इसमें हुई और ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, है ना. सिमिलरली और कौन सा टर्म है आपका देखिए, ए एक्स स्क्वायर और है आपका, बस एक ही टर्म कैंसिल हुआ, एक और हो जाएगा सर ax स्क्वायर ये प्लस वाला. b बीटा स्क्वायर प्लस c गामा स्क्वायर वाला. ये हाँ, ये डबल लाइन लगा रहा हूँ मैं. ये वाला टर्म जब ये इससे इंटू होगी तो ये होल स्क्वायर बनेगा, है ना. इसकी इंटू जब इससे होगी तो ये होल स्क्वायर बन के एक टर्म कैंसिल होगा. तो यहाँ पर आपके पास जो बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में यू विल बी हैविंग, so this implies that you have a alpha x plus b beta y plus c gamma z whole square. लेफ्ट में तो ये टर्म बचा, ये टर्म. राइट हैंड साइड में क्या बचा देखिए आपके पास, इसमें तो कोई कैंसिल नहीं हुआ है. तो हेयर यू हैव, इसकी इंटू पहले इसमें कर लो फर्स्ट ब्रैकेट में. तो यू हैव ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इंटू ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर. ठीक है. और अब इसकी इंटू करो माइनस में, तो माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर. ये आपका आया फर्स्ट टर्म, जो राइट हैंड साइड में 3 टर्म्स थे फर्स्ट टर्म. सेकंड में ये तो कैंसिल हो गया, इसकी इंटू इसमें हो जाएगी. तो माइनस सेकंड टर्म विल बी व्हाट, माइनस टाइम्स ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर. एक टर्म कैंसिल हो. और हेयर आल्सो दिस टर्म इज कैंसिल आउट, तो -2 इसकी इंटू इस 1 में होगी. तो यू हैव प्लस ट्वाइस ए अल्फा एक्स प्लस बी बीटा वाई प्लस सी गामा जेड. ये टर्म्स बचे यहाँ पर. ओके, नाउ अब इसको अगर हम -2 को इधर ले आओ, देखो इनमें कुछ कॉमन आ जाएगा. देखिए ये टर्म जो है यहाँ अगर आप देखें इसके फैक्टर हो जाएंगे, ये टर्म माइनस ये टर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी जेड स्क्वायर से कुछ फैक्टर हो जाएंगे. ये टर्म और ये टर्म. देखो देखो इस 2 को तो इधर ले जाओ, नेक्स्ट टर्म में लिख रहा हूँ मैं. तो यू हैव ए अल्फा एक्स प्लस बी बीटा वाई प्लस सी गामा जेड होल स्क्वायर माइनस ये जो +2 टर्म था आई एम टेकिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो इट विल बिकम माइनस. तो माइनस ट्वाइस ए अल्फा एक्स प्लस बी बीटा वाई प्लस सी गामा जेड. इसे मैं इधर ले आया क्योंकि मुझे होल स्क्वायर बनाना है. इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, +1 और ऐड कर दो. ठीक है. अब राइट हैंड साइड में क्या बचा है, राइट हैंड साइड में 1 ऐड करूंगा. इधर क्या बचा आपके पास देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ अगर फैक्टर ले लूं. तो अच्छा नेक्स्ट स्टेप, अभी यहाँ पर यू हैव ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर माइनस
ax square plus by square plus cz square minus a alpha square प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर प्लस 1 ऐड करा यहाँ पे दोनों साइड, यहाँ वन स्क्वायर 1। अब देखो ये सारे टर्म सही है जो यहाँ राइट हैंड साइड में थे आपके, आई एम जस्ट राइटिंग दिस टर्म, सिर्फ प्लस 1 ऐड करा हमने बोथ साइड। तो देखो अगर मैं इसको पी कह दूं इस पूरे टर्म फॉर अ मोमेंट, सपोज इट इज योर पी एंड इट इज क्यू, तो थोड़ा इजी, तो ये क्या है आपके पास देखना जरा, यू हैव पी क्यू माइनस पी माइनस क्यू प्लस 1, यही तो है। इसके फैक्टर अगर हम करना चाहें, Yes, sir. देखिए इसके फैक्टर मैं कर सकता हूँ, यहाँ से अगर p कॉमन ले लूं, क्या बचा q माइनस 1 ले लिया q माइनस 1, फैक्टर क्या होगा p माइनस 1 q है ना। सेम थिंग हेयर, तो हेयर यू हैव, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड तो आपका बन गया होल स्क्वायर किसका, a अल्फा x प्लस b बीटा y प्लस सी गामा z माइनस 1 होल स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और राइट हैंड साइड क्या हो गया p माइनस 1 q माइनस 1, p मीन्स दिस ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर माइनस 1 एंड a अल्फा स्क्वायर प्लस b बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर माइनस, इसके फैक्टर हमने इस तरीके से कर दिए तो लिखा था। बताइए यहाँ तक क्लियर है? बस ये Yes, sir. लास्ट, हाँ यस सर। ये लास्ट टॉपिक है आपका इसका सेंटर कॉनिकॉइड का, यूनिट 3 का भी, यूनिट 3 छोटी थी बस, मतलब लास्ट टॉपिक, इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। सो हियर यू गॉट दिस, सो नाउ व्हाट, so you have this into this is equal to square, or I can write, or can I write this, अगर इसको हम कैपिटल P मान लें तो you have P square is equal to, सपोज इसे मैंने S मान लिया और इसको S1, या यू कैन से S1 is equal to P square, ये लिख सकते हैं ना। so this is the equation S, where S is what, where this is your S, capital S, this is your S1, this is your P, so this is the equation, चाहे इसे ऐसे लिख लें इधर से लिख लें एक ही बात है, दैट मीन्स SS1 इज इक्वल, स्टैंडर्ड फॉर्म नॉर्मली हम इस तरीके से लिखते हैं अगर आपको याद हो, SS1 इज इक्वल टू P स्क्वायर, so I can write ax square plus by square plus cz square minus 1 a alpha square plus b beta square plus c gamma square minus 1 is equal to a alpha x plus b beta y plus c gamma z minus 1 whole square. This is the equation. Just put it in this box. This equation is known as the enveloping cone. This is called the enveloping cone of the conicoid जो हमने 1 से रिप्रेजेंट, ठीक है, SS1 is equal to 3 स्क्वायर, ये एनवेलपिंग कोन की इक्वेशन आएगी। बताइए क्लियर है? क्यों भाई? Yes, sir. हाँ Yes, sir. गुड। तो ये क्वेश्चन जो जी आपकी सर। आ रही थी, it was a equation and it was a homogeneous equation in XYZ। अगर आप ओपन करेंगे देखिए यहाँ पे, तो ये होमोजीनियस टर्म्स ही तो आ रहे थे सारे, वन से ऐड करके हमने बस स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दिया, एक्स वाई जेड की डिग्री सबके 2, so it is an enveloping cone। चलो लेट अस टेक सम प्रॉब्लम, और पढ़िएगा आप डिटेल में, कुछ प्रॉब्लम्स आप करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स मैं कर देता हूँ। जैसे एग्जांपल आपका 3 ले लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3, 1 2 4 7 9 10 ये सब असाइनमेंट प्रॉब्लम है। 1 2 4 है पेज 374 पे, 7 9 10 प्रॉब्लम इज ऑन पेज 375 and 14 15 16 these problems are on page number 376। these your home assignment problems।
आप ट्राई करेंगे इन सब प्रॉब्लम्स को, डिस्कशन करिएगा आपस में, देखिएगा कैसे करना है, कंसेप्ट सर आपको। बुक का पीडीएफ अच्छा, अरे यार एक्चुअली इस बुक का बुक पीडीएफ है नहीं, वो मुझे मोबाइल से बनाना पड़ेगा आपका एडोब रीडर से, एडोब स्कैन करके। चलिए मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। सर सेकंड यूनिट सेकंड यूनिट तो बहुत बड़ा है, सेकंड यूनिट तो भेज दिया शायद मैंने, फर्स्ट के भेजा था खाली सर थर्ड यूनिट चाहिए अभी, है। भेजा है आपने मुझे फर्स्ट क्वेश्चन भेज दीजिए सर, जो होम असाइनमेंट क्वेश्चन के। होम असाइनमेंट क्वेश्चन कौन से थे? सर जो होम असाइनमेंट क्वेश्चन थे ना सर, वही उन्हीं पेजेस का फोटो अच्छा दीजिए ठीक है, सर। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। इन पे जैसे यहाँ पर 374, 75, 76 इनका भेजना है ना ऐसे, ठीक है मैं आपको वो यस सर, आर्टिकल्स हमारे पास है सर। है। अच्छा सर ठीक है, यूनिट 3 पूरा भेज दीजिएगा, यूनिट सेकंड के पास। ठीक है चलिए मैं भेजने की कोशिश। वैसे तो बुक में जो मैं आपको नोट्स बना रहा हूँ यही सारे, ये बुक्स में टॉपिक ऐसे ही हैं, मैं उसी ऑर्डर में चलता हूँ। तो अगर आप मेरे सारे लेक्चर देख रहे हैं तो उसमें सारा बुक का ही है। अनसोल्ड प्रॉब्लम्स आ सर जाते हैं, मैं छोड़ देता हूँ, अनसोल्ड प्रॉब्लम्स सर कर राम लेते बल्लव से ना सर, हैं। राम बल्लव ना क्या कह रहे हैं ये, म्यूट सर, करो बुक जो है वाले। राम बल्लव है ना सर। हाँ हाँ, राम वल्लभ बुक है वो, बुक अगर आपको मिल जाए तो ले लीजिए। सर फर्स्ट सेमेस्टर में लिए थे सर, बस अभी तो है। फिर बस तो वही बुक है बस। अगर आपके पास है तो आप शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स पे फोटो खींच के यार, ग्रुप ओके पर, सर। ग्रुप पे डाल दीजिएगा। ज्यादा पेज नहीं है यूनिट, ये जो आपका लास्ट ये जो 3D का कोर्स जो है वो ज्यादा उसमें पेजेस है ही नहीं, थोड़े से पेज है। यूनिट 1 तो मैं भेज चुका हूँ ऑलरेडी आपको, बाकी का आप भेज दीजिएगा, ठीक है। ओके सर। मोबाइल से स्कैन करना आता है आपको? सर स्क्रीनशॉट आता है सर, हाँ बस तो सही है। फोटो लेके भेज दूंगा सर, हम्म। पीडीएफ बना के। क्या नाम है आपका? शफीकुर रहमान। यस सर। हाँ शफीकुर रहमान भेजेंगे, ग्रुप में डाल दिएगा, मुझे ये मिल जाएंगे। ओके सर। चलो अभी टाइम है, जल्दी से एक प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 आई एम टेकिंग पेज 374। सिंपल प्रॉब्लम है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन्स to the central conicoid. One conicoid is given 7x square plus 5y square plus 3z square is equal to 60 है ना, ये conicoid है। Understood equation से it is clear, it is a central conicoid which pass through the line, pass through the line 7x plus 10y is equal to 30 line है ये, and 5y minus 3z is equal to 0। ये क्या है बेसिकली, दीज आर द इक्वेशन ऑफ टू प्लेन्स की इक्वेशन है, लेकिन जब मैं इसे साइमल्टेनियस लिख दूंगा तो क्या रिप्रेजेंट करती है ये? लाइन इन लाइन लाइन इन स्पेस है ना। लाइन पे हाँ तो ये प्लेन की इक्वेशन है, लेकिन हमने इसलिए आप सोचोगे पास थ्रू द लाइन लिखा है सर ने, ये क्या है? जिसको नहीं आइडिया होगा, भूल गया, तो जब आप टू प्लेन्स को एक साथ लिख देते हैं तो उनका जो इंटरसेक्शन होता है बेसिकली वो एक लाइन आता है ऐसे, इस तरीके से है ना, जो कट करते हुए जाते हैं प्लेन। तो हमें एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन लिखनी है इस कोनिकॉइड का, सेंट्रल कोनिकॉइड का, और वो टेंजेंट प्लेन ऐसा है जो इन लाइन से पास हो रहा है। प्रॉब्लम सिंपल क्लियर है। देखिए अब हमें एक बार पता है कि द इक्वेशन of a plane passing through line is, if you have this type of line, so equation of a plane through the given line is क्या होती है भाई? उसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 7x plus 10y minus 30 plus lambda times 5y minus 3z is equal to 0। ये आपकी प्लेन की इक्वेशन बन जाती है पासिंग थ्रू दिस लाइन, क्योंकि वो जो लाइन, ये जो लाइन है, इस लाइन से क्या होगा, ये वाला प्लेन भी पास हो रहा होगा और ये प्लेन भी पास हो रहा होगा, है ना।
अगर मैं सेपरेट कह दूं तो ये प्लेन भी पास होगा और ये प्लेन भी पास होगा। तो लाइन कैसे तो प्लेन अगर हम लिखेंगे तो 7x प्लस 10y माइनस 30 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड लाइन, ये प्लेन की इक्वेशन होती है पासिंग थ्रू द गिवन लाइन। और इसको अगर हम सॉल्व कर लें, जस्ट अरेंज द टर्म्स, तो यू हैव 7x plus y का कोएफिशिएंट आई कैन टेक कॉमन, सो यू हैव 10 plus 5 lambda y and minus 3 lambda z, this equal to minus 30 आएगा, 30 को इधर लिख दो चाहे तो इज इक्वल टू 30। इसे सपोज हम नंबर 1 डाल दे रहे हैं। अब बात करते हैं कोनिकॉइड। कोनिकॉइड की प्लेन की क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन। अगर आपको याद हो कि अगर आपके पास कोई कॉनिकॉइड है तो उसका हमने कंडीशन निकाली थी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। इफ यू रिमेंबर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, if you have any conicoid ax square plus by square plus cz square is equal to 1, then this plane will touch this cone। तो क्या कंडीशन थी, l square upon a और प्लस m स्क्वायर अपॉन b plus प्लस n n square स्क्वायर अपॉन c इक्वल्स टू p ये कंडीशन p स्क्वायर है ना, कि दिस प्लेन विल टेंजेंट टू दिस कोनिकॉइड। तो एक हमने क्वेश्चन तो ये निकाली। अब इससे अगर हम निकालें तो हमारे कोनिकॉइड को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। यहाँ पे 1 लाओ तो 70 को डिवाइड कर सकता हूँ मैं। सो यू कैन राइट, सो द गिवन कोनिकॉइड कैन बी रिटन एज 7x स्क्वायर अपॉन 60 प्लस क्या है यहाँ पर b कितना है 5y स्क्वायर अपॉन 60 प्लस 3z स्क्वायर अपॉन 60 इज इक्वल टू 1, है ना। इस ये फॉर्मूला लगाना ना, मैं a कितना हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज कोएफिशिएंट ऑफ y। तो इक्वेशन आपके पास नाउ विल बिकम, तो l, अब lmn क्या होंगे देखिए, सपोज इट इज योर इक्वेशन, इसे इक्वेशन हम 2 कर दें अगर, सो l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर। अब इक्वेशन तो आपने जो निकाली है प्लेन थ्रू द गिवन लाइन इज, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, है ना। तो ये प्लेन क्या होगा, ये अगर प्लेन टेंजेंट, हमें टेंजेंट प्लेन की क्वेश्चन निकालनी है, तो दिस प्लेन इज अ टेंजेंट प्लेन। हमें ये तो निकालना था कि टेंजेंट प्लेन हो थ्रू दिस लाइन, तो पासिंग थ्रू दिस लाइन हमने एक प्लेन निकाला, वो ये है। अब अगर ये प्लेन टेंजेंट प्लेन है तो क्या हुआ, इसका जो l है, l क्या लूंगा मैं 7, दिस इज m, दिस इज n, है ना। इस कंडीशन में रख देंगे हम कि इक्वेशन 1 प्लेन 1 इज अ टेंजेंट प्लेन। उसकी कंडीशन क्या l स्क्वायर, तो l इज हाउ मच हियर 7, तो 7 स्क्वायर अपॉन a कितना है यहाँ पर 7 अपॉन 60 प्लस m स्क्वायर, m इज 10 प्लस 5 लैम्डा, 10 प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर अपॉन b कितना हो गया देखिए, तो 12 ले सकता हूँ डायरेक्ट, एंड सिमिलरली हियर इट इज 30 प्लस n स्क्वायर इज 3 लैम्डा स्क्वायर, माइनस 3 है तो प्लस हो जाएगा 9 लैम्डा स्क्वायर अपॉन 30, कितना आएगा 30 आएगा, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है, नहीं सॉरी 20 आएगा। नहीं ये 1 अपॉन 20 12, आएगा। 1 अपॉन 12 आएगा, एक मिनट, ये 1 अपॉन 12 सब- आएगा ना, हाँ और ये 1 सब अपॉन 20, 20 हाँ, क्योंकि a क्या है, a तो 7 अपॉन 60 ठीक है, b कितना है 1 अपॉन 12 ठीक है 1 अपॉन 20, दिस इक्वल टू p स्क्वायर, p क्या था आपके पास 30, ये जो p है ना, दिस इक्वल टू 30 स्क्वायर, ये हो गया। तो इसको जरा आप सॉल्व कर लें, देखिए 7 क्या 60 ऊपर ले गए हम, तो 60 इंटू 7 ऊपर विल बिकम 420। अब सिंपल कैलकुलेशन है आपकी, 12 जस्ट टेक ऑन डिनोमिनेटर, 10 प्लस 5 लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 20 यू कैन टेक ऑन न्यूमरेटर, सॉरी, एंड 20 इंटू 9 180
लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 900। ये 420 को इधर ले आओ, सॉल्व कर लो, इसे माइनस करेंगे ना, तो यू विल बी हैविंग 12 से डिवाइड भी 420 इधर ले आए आप, तो हाउ मच इट इज 480। 420 को उधर ले जाऊंगा नेक्स्ट स्टेप में, पूरी इक्वेशन में 12 से डिवाइड कर दीजिए आप, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 10 + 5 लैम्डा होल स्क्वायर। 12 से कितनी बार गया 12 × 12 60 15 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो गया 12 से 4 बार 40। 40 सर। इसके होल स्क्वायर करके व्हेन यू विल ओपन इट इट विल गिव यू वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसको क्वाड्रेटिक को जब आप सॉल्व करेंगे व्हेन यू विल बी सॉल्विंग इट, ये क्वाड्रेटिक बनेगी आपकी इक्वेशन 40 लैम्डा स्क्वायर प्लस 100 लैम्डा प्लस 60 इज इक्वल टू 0। इसे डिवाइड कर लें तो लैम्डा के 2 रूट्स आएंगे -1 एंड -3/2। तो पुटिंग बैक ये लैम्डा के रूट्स आ गए, यू विल पुटिंग इन 1, so you will be getting putting in 1 2 आपके पास जो ये आएंगे प्लेन्स आएंगे ना, 2 ही प्लेन तो आएंगे क्योंकि 2 प्लेन्स आर कंटेनिंग द लाइंस, तो लैम्डा इज इक्वल टू -1 जब आप